Hello students, today we will discuss the question answers of our chapter number 2 from our book First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's start with the question number 1. Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? So here the ceremonies, which ceremonies are talked about? These ceremonies are related to the oath taking by Nelson Mandela when he was elected as the first democratic president of South Africa. So the ceremonies took place in the campus of the Union Buildings of Pretoria. Pretoria is the name of the city, and which were attended by the dignitaries and the leaders of many nations. So these ceremonies related to oath taking by Nelson Mandela, these took place in the campus of Union Building of Pretoria. Pretoria city की यूनियन बिल्डिंग में ये टेक प्लेस हुई, and these ceremonies were attended by so many dignitaries and leaders from all over the nations, all over the world. In India, Rashtrapati Bhavan, Red Fort, Supreme Court of India in New Delhi, as well as the Madras High Court in Chennai are a few examples of the buildings that are made of sandstone. So here we were also asked a few names of a few buildings in India that are made of sandstones. So in India, we are having Rashtrapati Bhavan, Red Fort and Supreme Court, as well as Madras High Court in Chennai that are made of sandstone. Can you say how 10th of May is an autumn day in South Africa? So as South Africa is in the southern hemisphere, May falls in the autumn season, thus 10th May is an autumn day. As you know students that we are living in the northern hemisphere, like India is in the northern hemisphere, and here we are talking about the South Africa that lies in southern hemisphere. So these are both of these are opposite directions, south and north. So the seasons also that we are having throughout the year, these are also opposite in these hemispheres. Like in South Africa, whatever season we are having in the north, opposite season will be there in the South Africa. So in May there falls autumn season, and on the other hand we are having this nearby in approximately in September. So let's come to next question. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. And what does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Now here it is asked कि जब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच देते हैं तो शुरू में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं. तो व्हाट इज इट, कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या है? So by an extraordinary human disaster, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa. So here extraordinary human disaster, he means to say by this कि जो वहाँ पे apartheid system चल रहा था साउथ अफ्रीका में, कि जैसे apartheid system, like apartheid system is a policy in which racial discrimination is there, like discrimination on the basis of color of the skin is there, and the white people rule over the black people. So during this there was a racial segregation. Segregation means separation based on the color, and the blacks suffered a lot. So here, as I have told you, that the white people white people used to rule over the blacks. So the blacks were also deprived of so many rights, and on the other hand white people were having so many extra rights. So this way there was a racial discrimination, or the discrimination based on the color of the skin. They were not allowed to demand freedom or any rights. So this is talked about black people, like blacks were not having any rights of freedom. He considered it as a great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. So in the second part of our question, like what is the glorious human achievement he speaks at the end. At the end of his speech, Nelson Mandela says that what is a great glorious human achievement. He refers to
He refers that a black person became the president of a country where blacks were not even considered as human beings, rather they were treated as animals. तो जहाँ पे ब्लैक पर्सन को ब्लैक कलर्ड स्किन के ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, और वहाँ पे उस कंट्री में एक ब्लैक कलर्ड स्किन पर्सन प्रेसिडेंट बनता है कंट्री का. सो इट वाज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. अब जो इंटरनेशनल लीडर्स, दैट मीन्स द लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आए थे उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, ओथ टेकिंग सेरेमनी को, तो उसमें नेल्सन मंडेला उनको किस बात के लिए थैंक्स करता है. सो हियर मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेयरिंग इन सेरेमनी because not too long ago the South Africans were considered outlaws. So here Nelson Mandela on that particular day is feeling very privileged or feeling very honored to welcome the leaders from all over the world at that particular ceremony, and because not too long ago, क्योंकि कुछ देर ही पहले, बहुत देर पहले की बात नहीं है, उससे अगर कुछ ही देर पहले या कुछ साल पहले की बात की जाए तो साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज, कि साउथ अफ्रीकन्स को लॉ ब्रेकर्स कहा जाता था. एंड आउटलॉज आर द पर्सन्स और द कंट्रीज हु ब्रेक लॉज एंड हु डू इल्लीगल वर्क्स. He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. Thus, this event could be considered as a common victory for justice, peace, and human dignity. Moreover, he also thanks to all the persons coming from all over the nations for coming there and witnessing that historical ceremony of oath taking. Because thus this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. Because जैसे उसके पास I'm repeating, like Mandela is feeling very honored on that particular day कि वहाँ पे सारे nations के जो हायर अथॉरिटीज़ जो थी वो आई हुए थे, लीडर्स आए हुए थे, एंड वो इसलिए इतना प्रिविलेज फील कर रहा है कि बिकॉज ही हैड गॉट अ चांस टू होस्ट द अदर कंट्रीज. बिकॉज कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज, इलीगल पीपल, वो इलीगल कंट्री या इलीगल पीपल काउंट होते थे साउथ अफ्रीकन्स. सो ही ऑल्सो थैंक्स देम टू कम देयर and attending that ceremony, and this way he is saying that this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. Next question is there, what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? Now here that means which ideals Nelson Mandela, that means Nelson Mandela फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका के लिए क्या आइडियल सेट करते हैं या फिर क्या होप रखते हैं. Nelson Mandela sets the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. He also sets the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. Racial origins, that means on the basis of color ऑफ द स्किन. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो उनकी जो फ्यूचर जो सोसाइटी होने वाली है, इट विल बी फ्री फ्रॉम द पॉवर्टी एंड देयर विल बी इक्वल राइट्स टू एवरीवन, नो डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स विल बी देयर एंड नो वन विल सफर इन दैट future society. And he also sets the ideal for a society where there would be no discrimination. Moreover, he is saying that there would be no discrimination based on based on gender, color, caste or creed. What did the military generals do? Military generals ने क्या किया and how did their attitude change and why? और उनका attitude किस तरह से change हुआ और क्यों change हुआ? The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela. अब उन्होंने क्या किया था? They had saluted Mandela. Nelson Mandela को salute किया था and also they had
promised their loyalty. Pledged their loyalty, that means they had promised their loyalty as well as respect, which was of great significance, as during apartheid era they would have arrested him, and it was very significant. This thing was very significant, बहुत importance रखती है ये चीज़, क्योंकि अगर apartheid system चल रहा होता तो they would have definitely have arrested him. और अब ये अपार्थिड जो था अबॉलिश हो गया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अबॉलिश हो गया था. नाउ दे वर सल्यूटिंग मंडेला. The change in their attitude was because of the struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. और ये change उनके attitude में जो आया था कि उन्होंने अरेस्ट करने की बजाय अपार्थिड सिस्टम होता तो अरेस्ट करते, और अभी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की वजह से उसको नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं. तो सो दिस चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस. ये किसके स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट था कि उनके जो हाईएस्ट जो मिलिट्री जनरल्स थे उनके एटीट्यूड में चेंज आया था. इट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस of the freedom fighters of South Africa. Freedom fighters or freedom fighters, here we are talking about the freedom from the apartheid system. कि जो लोगों ने जो फाइटर्स ने स्ट्रगल किया इस अपार्थिड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, इट वाज द रिजल्ट ऑफ दोज हीरोज, result of the sacrifices of those heroes. So this struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid but brought a change in the mindsets of many. So उनके जो पास्ट हीरोज थे उन हीरोज के स्ट्रगल ने ना तो सिर्फ इस नेशन को फ्रीडम दिलाई फ्रॉम द अपार्थिड सिस्टम बट ऑल्सो ब्रॉट अ चेंज इन द माइंडसेट्स ऑफ मैनी. इवन बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी भी चेंज कर दी, उनका एटीट्यूड भी चेंज कर दिया. जैसा कि वी कैन से कि जो मिलिट्री जनरल जो कि अपार्थिड सिस्टम में उनको अरेस्ट करने से भी घबराते नहीं थे, सो अभी उनको वो सल्यूट कर रहे थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग. अब 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी. So on the auspicious occasion of the inauguration, 2 national anthems, one by the whites and the other by the blacks, were sung, which symbolized the equality of the blacks and the whites. अब ये दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए, क्योंकि ये दोनों जो है सिंबलाइज करते हैं इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एज वेल एज वाइट्स. अब ये 2 नेशनल एंथम थे कौन से, एक था ब्लैक पीपल का और दूसरा था वाइट्स पीपल का. सो दोनों नेशनल एंथम गाने का जो मकसद था जो उसके पीछे, वो यही था कि ये दोनों में इक्वालिटी को शो करता है. Next question is there, how does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and the final decade of the 20th century? So यहाँ पे पूछा जा रहा है कि how does Mandela describe the system of government. मंडेला जो है अपनी स्पीच में किस तरह से अपने गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरह से वो बताते हैं कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी लाइक 1901 to 1910 तक क्या सिस्टम था गवर्नमेंट का, और 1991 से लेके 2000 तक क्या सिस्टम था. दैट मीन्स फर्स्ट डेकेड 1901 to 1910 एंड द लास्ट डेकेड फाइनल डेकेड दैट इज 1991 to 2000. So in the first decade of this century, the whites erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies of the world had ever known. So जो फर्स्ट डेकेड था 1901 से लेके 1910 तक, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वाइट्स जो थे, वाइट पीपल जो थे, वाइट कलर्ड स्किन पीपल, दे हैड स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. So racial domination against the blacks. Against the blacks, that means black colored skin people were treated very with the cruelty, and whites used to rule over the blacks, and blacks were also considered like animals, and they were deprived of so many rights. They were not having right of freedom. So they were just under the whites. So they had created a very harsh society and inhuman society.
In the final decade of the 20th century, the previous system, now which previous system? This racial domination system, in which whites used to rule over the blacks. So this system had been overturned. Overturned means changed, totally changed, and replaced by the one which recognized rights and freedom of all the people regardless of the color of their skin. So in the final decade of 20th century, that means in 1901 to 2000, 1991 to 2000, this period of 10 years, in this period the previous system totally abolished and it was replaced by the new one, in a new system in which each and every person was having proper rights and full freedom regardless of regardless of the color of their skin, कि बिना किसी भी डिफरेंस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो स्किन के कलर का डिस्क्रिमिनेशन है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हर एक इंसान को प्रॉपर राइट्स एंड प्रॉपर फ्रीडम का अधिकार था in the final decade of the 20th century because it was the democratic era. तो जब 1994 में नेल्सन मंडेला was selected as the first democratic president of South Africa. तो डेमोक्रेसी में आपको जैसे पता ही है कि हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर राइट्स हैं, हर इंसान को इक्वल समझा जाता है, कोई कलर, कास्ट, क्रीड, किसी चीज़ का भी कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. तो सेम वे वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम आ गया था इन द लास्ट डेकेड. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? नाउ करेज का क्या मतलब था मंडेला के लिए? फॉर मंडेला करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर. सो मंडेला के अकॉर्डिंग जो करेज है, हिम्मत है, उत्साह है, वो क्या है? इट डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. इसका मतलब ये नहीं कि हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं, रादर इट इज़ अ विक्ट्री ओवर फियर. रादर उनके अकॉर्डिंग जो करेज है वो है डर के ऊपर जीतना, डर के ऊपर काबू पाना और डर के बाद जीत हासिल करना. डर से मतलब डरना नहीं, रादर जीत हासिल करना. अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. वो कहते थे कि बहादुर इंसान वही है जो, बहादुर इंसान वो नहीं जो फियरलेस है, जो मतलब घबराता नहीं है, डरता नहीं है, रादर जो इसको जीतता है, डर को जीतता है, बहादुर इंसान वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? अकॉर्डिंग टू मंडेला कि क्या नेचुरल है, लव या फिर हेट? सो फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट. तो अकॉर्डिंग टू मंडेला की जो लव है वो लव की जो टेंडेंसी है एक इंसान के अंदर वो नेचुरल है, रादर हेट करना तो सिखाया जाता है. बट अ पर्सन लव्स नेचुरली, कि उसकी चाहे कहो कि बाय बर्थ ही होती है. सो लव जो है वो लव इज़ नेचुरल रादर देन हेट, और हेट जो है वो सीखनी पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? अब जो मंडेला है वो कौन सी दो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हमारी ड्यूटीज़, कौन सी दो जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं? मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, wife and children, and the second obligation is towards his people, his community and his country. तो मंडेला कहते हैं कि जो हर एक इंसान की दो ड्यूटीज़ हैं. सबसे पहली है, एक तो पहली ड्यूटी उसकी अपने परिवार के प्रति है, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के प्रति, बच्चों के प्रति जो भी जिम्मेवारियां हैं उसे वो पूरा करना होता है. एंड सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, उसकी अपने ही लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति उसकी दूसरी ड्यूटी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? फ्री होने का मतलब क्या था मंडेला के लिए, फ्रीडम क्या थी व्हेन ही वाज अ बॉय एंड व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड द ऑनरेबल फ्रीडम्स? और वो किस तरह से अपनी इस ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी फ्रीडम को कंपेयर करते हैं बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के साथ. नाउ बेसिक
और ऑनरेबल। हम अभी ये क्लियर होगा कि कौन सी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम कौन सी होती है। एंड हियर ट्रांजिटरी फ्रीडम आई विश टू टेल यू कि ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी फ्रीडम, और टेम्परेरी फ्रीडम यहाँ पे किस फ्रीडम की बात हो रही है, जो कि मंडेला सोचते थे एज अ बॉय और एज अ स्टूडेंट। Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy the blissful life. So here, students just note कि यहाँ पे हमारा ये मंडेलाज नहीं आना है, मंडेला रहेगा अकेला। ओके। Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy the blissful life. किसी और बच्चे की तरह मंडेला के लिए भी जो फ्रीडम थी उसका मतलब यही था कि इंजॉय करना जो लाइफ मिली है, और मैरी मेकिंग, खुश रहना, इंजॉय करना। ही वॉज फ्री टू रन नियर हिज फील्ड्स और स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट पास्ड थ्रू हिज विलेज। तो उसके लिए, नेल्सन मंडेला के लिए, जब वो छोटे थे तो उनके लिए भी फ्रीडम का मतलब वही था जो कि आम बच्चों के लिए होता है, कि अपनी मर्जी से कहीं भी घूमना फिरना। और जैसे ही वॉज फ्री टू रन नियर हिज फील्ड्स, अपने बचपन की बात करें, उनके बचपन की बात करें तो वो अपने बचपन में खेतों में इधर उधर जहाँ भी घूमना अपने घर के पास, या फिर स्विमिंग करना स्ट्रीम में, नदी में जो उनके घर के पास से निकलती थी, विलेज के पास से, तो यही उनके लिए फ्रीडम थी। His sense of freedom was limited to his own enjoyment. तो उस टाइम वो सिर्फ अपनी सेल्फ enjoyment को ही अपना फ्रीडम समझते थे। Gradually he learned that his boyhood freedom was an illusion. और धीरे धीरे उनको समझ आया कि उनकी जो ये बॉयहुड फ्रीडम है, इट वॉज जस्ट एन एल्यूजन, कि ये तो सिर्फ दिखावा है, मतलब एक्चुअल फ्रीडम उनकी ये नहीं है। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो दिखती है फ्रीडम, ये एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। When a person becomes an adult and takes off a childhood look transitory, but because अब जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, मेच्योर माइंड हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो जो चाइल्डहुड प्रैंक्स होते हैं, एंटिक्स मीन्स प्रैंक्स, जो चाइल्डहुड में इंजॉयमेंट्स होती हैं या फिर मजाक होता है या वॉट एवर, ये सब ट्रांजिटरी दिखते हैं, ट्रांजिटरी लगते हैं, मतलब टेम्परेरी से फील होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव। क्योंकि एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से, एडल्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़, जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज आर जस्ट वेस्टफुल, सब बेकार सी होती हैं, इसमें कुछ यूज़फुल नहीं होता। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड, अब यहाँ पे हमारी एज अ बॉय, एज अ किड की बात हुई, तो अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट फ्रीडम क्या मैटर करती थी, उनके लिए क्या फ्रीडम थी। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, और एज अ स्टूडेंट भी वो उनको अपने लिए ही फ्रीडम चाहिए थी, किसी दूसरे के लिए उन्होंने नहीं सोचा। एंड विच काइंड ऑफ फ्रीडम ही नीडेड एट दैट टाइम, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात को कभी भी अपनी मर्जी से घर से बाहर रहना, इस तरह की उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। रीड वॉट ही प्लीज, और कुछ वही बुक्स रीड करनी जो उनको कोई रोक टोक ना हो, जो बुक वो रीड करना चाहते थे बस उनको वो बुक रीड करने की परमिशन मिले। सो दिस काइंड ऑफ फ्रीडम, एंड गो वेयर ही चूज, और जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ वो बिना परमिशन के वो चले जाए, ऐसी फ्रीडम ही वांटेड टू एट द टाइम व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। Later, as a young man in Johannesburg, he yearned for the basic and honorable freedom. Now he is comparing this kind, both freedoms with this kind. कि later as a young man, जब वो बड़े हुए, in जोहानिसबर्ग में रह रहे थे, तो he yearned for the basic and honorable freedom. उस टाइम उनको एहसास हुआ, he yearned means he desired for the basic and honorable freedom of achieving his potential. अब बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम क्या है? इट इज़ द फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अपना कोई भी वर्क करे, कोई प्रोफेशन चूज़ करे, काम करें, कीप हिज अर्निंग, और जो पैसा वो कमाएं वो अपने पास रखें, एंड मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और उस टाइम उनकी इच्छा थी कि उनकी शादी हो जाए और उनकी अपनी फैमिली हो। सो अर्निंग एन ऑनेस्ट लाइवलीहुड फॉर डेली ब्रेड गेट्स एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। क्योंकि जब अर्निंग एंड ऑनेस्ट लाइवलीहुड, जब हम अपनी अर्निंग लेते हैं, अर्निंग मतलब कमाते हैं, आजीविका कमाते हैं डेली ब्रेड्स के लिए, डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तभी फैमिली में प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है, और तभी ही सोसाइटी में, समाज में और फैमिली
दोनों में हमारी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है जब हम अच्छे से कमाते हैं और अपनी फैमिली को प्रॉपर फीड करते हैं। सो हियर ऑनरेबल हो गया कि ऑनर किस तरह की फ्रीडम से उन्हें ऑनर मिलेगा, या ऑनरेबल फ्रीडम कौन सी हुई कि अपनी कमाई करना और अपनी फैमिली की टेक केयर करना। सो बेसिक नीड्स फुलफिल करना स्पेशली एज वेल एज उन बेसिक तो ज़रूरी है ही है, उसके बाद फिर लग्जरी की बात आती है। सो अपनी फैमिली का प्रॉपर ख्याल रखना, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। सो ऑल दिस आर दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। So next question is there. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? अब मंडेला को क्या लगता है कि ऑपरेसर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो उनके दिमाग पे कोई बोझ नहीं है, या उनके अंदर कोई कमी नहीं है, या उनकी कोई नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं है। वाई और वाई नॉट? मंडेला डजंट थिंक दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री। नहीं, मंडेला को नहीं लगता कि ऑपरेसर जो है वो फ्री होते हैं। ऑपरेसर होता कौन है? अ पर्सन हु डज अनजस्ट और द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑन अदर्स विद अदर्स। सो ऑपरेसर जो है उनकी नज़रों में वो भी फ्री नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि उनकी नज़रों में जो एक ऑपरेसर है जो अत्याचार करता है दूसरे के ऊपर, वो खुद भी शिकार है किस चीज़ का? हेट्रेड का, नफरत का शिकार है। एंड ही इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, उसके अंदर भी अपमान भरा हुआ है, प्रेजुडाइज भरा हुआ है। प्रेजुडाइज मीन्स किसी को नीची नज़र से देखना, किसी को बुरा भला कहना बिना किसी वजह से। एंड नैरो माइंडेडनेस, ही इज़ हैविंग दीज नेगेटिव क्वालिटीज़। हु? ऑपरेसर खुद विक्टिम है हेट्रेड का, प्रेजुडाइज का और नैरो माइंडेडनेस का। सो ही इज ऑल्सो नॉट अ फ्री पर्सन। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मीन्स जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है और जिसके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, ऑपरेसर इज told to white community and oppressed are the black community. So according to Mandela कि दोनों ही oppressor as well as oppressed are robbed of their humanity and peace. दोनों के ही मन में शांति नहीं होती, चाहे वो oppressor है चाहे वो oppressed है, and both are robbed of their humanity. दोनों की ही इंसानियत खत्म हो जाती है। Next question is that why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify the triumph of? अब बहुत सारे लोग जो एक नंबर ऑफ पीपल, ये नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ये इनॉग्रेशन सेरेमनी को क्यों अटेंड करते हैं, क्या सिंबलिज्म है इसका, एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, और ये किस चीज़ की जीत को दिखाता है। By becoming the part of the inauguration, the international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. So, by becoming the witnessing member of this inauguration ceremony, जो सारे लीडर्स थे उन्होंने क्या शो किया? अपनी एकजुटता यानी कि सॉलिडारिटी, दैट मीन्स द यूनिटी शो की। किसके अगेंस्ट? अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से और रेशियल डोमिनेशन के रिलेटेड है, उस चीज़ के अगेंस्ट, उस पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी यूनिटी को शो किया। एंड दे ऑल्सो शोड देयर फेवर टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, और it signified the victory of good over evil. So it is signifying the victory. Triumph means victory. It signified the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination. सो ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी, एक तो यहाँ पे अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर, इसको ये सिग्निफाई करता है। और दूसरा जो टॉलरेंट सोसाइटी, ट्रायम्फ ऑफ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब जो फ्यूचर जो सोसाइटी होगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बहुत ही अच्छी सोसाइटी बनेगी जिसमें किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे। सो
it was a triumph of a tolerant society without any discrimination. So what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Now when Mandela is saying कि वो simple sum of all those, कि वो जब वो कह रहे हैं कि he is the result of, he is telling to himself that he is the result of all those African patriots who had gone before him, जो उससे पहले चले गए हैं, जो मंडेला से पहले चले गए हैं, that means who were died before Mandela and who were along with him in the struggle of this apartheid freedom apartheid freedom struggle में जो उनके साथ थे, जो heroes of yesteryears, तो वो जो उनसे पहले चले गए हैं, जो उनसे पहले मर चुके हैं, he himself is the result of all those the struggles and sacrifices of African patriots. So by saying this, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. So ऐसा कहकर मंडेला अपनी ट्रिब्यूट उनको पे करना चाहते हैं, लाइक उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी लाइव्स को सेक्रीफाइस किया फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के सेक के लिए, फ्रीडम की खातिर जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और स्ट्रगल किया. He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. अब वो उनको थैंक्स, उनका आभारी है. नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि वो उनके आभारी हैं, उन सब लोगों के आभारी हैं जो उनसे पहले चले गए हैं. एंड बिकॉज दोज हीरोज, और क्यों उनके लिए थैंकफुल है, क्योंकि इन ग्रेट पर्सन्स ने नेल्सन मंडेला के लिए कॉपरेशन और यूनिटी का रास्ता तैयार किया. सो देयरफॉर ही गॉट द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल टू बी एबल टू कम टू पार टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज ऑन पीपल. और उन्हीं की वजह से उससे जो नेल्सन मंडेला को अपने लोगों की सपोर्ट मिली एंड आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसके पास वो पावर आ गई है, वो शक्ति आ गई है, वो राइट्स आ गए हैं कि वो अपने लोगों के लिए इक्वालिटी, अपने लोगों को इक्वालिटी दे सकें, इक्वालिटी प्रोवाइड करवा सके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट would you agree that the depths of oppression create heights of character? Depths of oppression create heights of character. Do you agree? How does Mandela illustrate this? Mandela इसको किस तरह से exemplify करते हैं? And can you add your own examples to this argument? क्या आप अपनी example दे सकते हैं इसके related? Depths of oppression, that means oppression to an extent, limitless oppression, cruelty, एक लिमिट, मतलब लिमिट क्रॉस करके क्रूअल होना किसी के प्रति. सो इट क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मीन्स द पीपल विद ग्रेट कैरेक्टर. तो कहते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटलेस जो ऑपरेशन होती है, क्रूएलिटी होती है, वो ऐसे इंसान पैदा करती है, ऐसे कैरेक्टर्स, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर पैदा करती है कि मतलब ऐसे इंसान जिनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ जो हैं टू एन एक्सटेंट, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक होती हैं, एंड हु कैन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, हु कैन स्ट्रगल एंड हु कैन फेस सो मेनी हार्डशिप्स. ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा करेजियस, हिम्मत वाले, बहुत ज़्यादा एंड आवाज़ उठाने वाले. So how does Mandela illustrate this? I agree with the statement that depths of oppression create heights of character. Yes, I agree with this statement. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa. अब नेल्सन मंडेला इसको इलस्ट्रेट करते हैं by giving examples of South Africa, heroes of South Africa or the great people of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. अब नेल्सन मंडेला इन लोगों की एग्जांपल्स देते हैं जो कि उनके साथ फ्रीडम फाइटिंग में थे, फ्रीडम फ्रॉम दिस अपार्थाइड सिस्टम,
and they also sacrificed their lives and they also suffered a lot. सो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर डिफरेंट एग्जाम्पल की बात करें, तो इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल. इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स. इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं. सो ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स. अगर हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें जो कि हमें 1947 में मिली फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से हमने फ्रीडम ली, तो उस फ्रीडम स्ट्रगल में देयर वाज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स. दैट मीन्स देयर वर सो मैनी लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर. बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले, करेज वाले, विद्रोह करने वाले और आवाज़ उठाने वाले, एंड ऑल्सो हु सफर्ड अ लॉट. तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं. एंड प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड एंड एनकरेज द पीपल ऑफ नोबल कैरेक्टर्स like महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर. और शायद कहा जा रहा है कि शायद इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन लिमिटलेस क्रूएलिटी और लिमिटलेस अनजस्ट ट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिश रूल कि हमारे इंडिया में भी ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए कि ब्रिटिश रूल ने ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उठ खड़े हुए जिन्होंने हमें लाइक महात्मा गांधी, ये सब नेम्स हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस. तो मंडेला की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम मतलब मंडेला का एटीट्यूड फ्रीडम के प्रति किस तरह से चेंज होता है विद हिज एज एंड एक्सपीरियंस. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है या एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग साइड बाय साइड उनका फ्रीडम के प्रति क्या एटीट्यूड रहता है. विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी या एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मंडेला को एक्चुअल रियलिटी में मीनिंग समझ आया फ्रीडम का. So here we can see कि as a young boy he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. तो जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनको लगता था कि वो तो एकदम फ्री पैदा हुए हैं. एंड ही ऑल्सो यूज टू बिलीव कि जब तक वो अपने फादर को ओबे करते रहेंगे एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, जब तक वो अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो करते रहेंगे, सो ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर. तो अपने आप को वो सोचते थे कि वो फ्री हैं. जब तक उन्होंने ये चीज़ मतलब अपने कस्टम्स को फॉलो किया और फादर को ओबे करते रहे तो उन्हें लगा कि वो फ्री हैं. एज ही ग्रू ओल्डर फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स. और जैसे वो थोड़ा बड़े हुए तो अपनी फैमिली को रेज करना, दैट मीन्स टू फीड द फैमिली और टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड ऑल्सो द फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी अर्निंग्स लेना अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल, अपनी अर्निंग्स करना. And this kind of thinking or these kind of thoughts started dominating him कि उनके लिए फिर ये फ्रीडम का मतलब यही था कि अपनी मर्जी से अपनी अर्निंग कमाना, अपनी मर्जी का काम करना, अपनी मर्जी से शादी करना and so on. Gradually he realized that he was selfish during his boyhood. और धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि जब वो छोटे थे उनकी बॉयहुड फ्रीडम जो थी उस टाइम वो जो सोचते थे कि मैं फ्री हूँ, तो ही वॉज सेल्फिश कि अपने आप को फ्री सोचते थे और खुश रहते थे फ्रीडम के नाम पे. तो ही वॉज सेल्फिश. ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स. और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सिर्फ ये उन्हीं की फ्रीडम नहीं थी जिसको रिड्यूस किया जा रहा था, लाइक उन्हें बहुत सारे राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा था. रादर इट वाज द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, दैट मीन्स ऑल द ब्लैक कम्युनिटी वाज डिप्राइव्ड ऑफ some rights. So the freedom of all blacks was curtailed. It was the freedom from the fear and prejudice. Now he got the meaning of the freedom, that the freedom is actually the freedom from the fear and prejudice. So age and experience widened his perspective of freedom. So according as the age
एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो उनका फ्रीडम को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू था और फ्रीडम समझने का पॉइंट ऑफ व्यू था, इट ऑल्सो गॉट वाइडेंड, ये भी बड़ा होता गया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए, उनकी जो भूख थी, हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, उन्होंने इस भूख ने उनकी लाइफ को कैसे चेंज किया? Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. अब मंडेला को रियलाइज़ हुआ कि जो ही रियलाइज इट इन हिज यूथ, अपनी यूथ में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, ये सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम नहीं थी जिसको कर्टेल किया जा रहा था, रिड्यूस किया जा रहा था, रादर इट वाज द फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक्स, सारी ब्लैक कम्युनिटी की फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा था, रिड्यूस किया जा रहा था बाय डिप्राइविंग देम ऑफ सो मैनी राइट्स। एंड द हंगर फॉर हिज ऑन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो इस तरह से जो उनकी जो भूख थी, खुद की जो फ्रीडम की जो भूख थी, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी कम्युनिटी भी उनके साथ सेम सफ़र कर रही है, तो ये जो भूख थी उनकी अकेली अपनी फ्रीडम के लिए भूख ना रह के अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की, सबकी फ्रीडम की भूख जो थी वो बन गई। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रेबल। सो इस भूख ने कि जो उनकी अपने लोगों के लिए जो फ्रीडम की भूख थी, सो इट चेंज अ फियरफुल मैन, एक डरे हुए इंसान को एक फियरलेस रेबल बना दिया। मतलब जो डर के रहता था इंसान, एक लिमिट्स में रहता था अपनी, तो उन्हें उस इंसान को इस भूख ने, फ्रीडम की भूख ने, अपनी जनता की फ्रीडम की भूख ने एक रेबल बना दिया, एक विद्रोही बना दिया। So he sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater and noble cause. So उन्होंने अपनी लाइफ के कंफर्ट्स को, अपनी वेल सेटल्ड फैमिली लाइफ के कंफर्ट्स को अवॉइड किया, इसको सेक्रीफाइस किया, इन सब कंफर्ट्स का बलिदान दे दिया, किस लिए? टू फाइट फॉर अ ग्रेटर एंड नोबल कॉज, एक ग्रेट और नोबल कॉज के लिए। अब नोबल कॉज क्या है? टू abolish this apartheid system and to abolish this racial discrimination system. So he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. तो फिर उन्होंने, जब उनके अंदर ये भूख की तड़प ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जैसे उन्होंने इस कांग्रेस को ज्वाइन किया, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सो दिस चेंज हिम कम्प्लीटली, एंड इट चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। उनको कम्प्लीटली चेंज करके एक बहुत ही बोल्ड और बहादुर इंसान बना दिया, हु फॉट अगेंस्ट द रेशियल प्रेजुडाइज थ्रू आउट हिज लाइफ, जो कि अपनी प्रॉपर बहुत एक लंबा टाइम दिया उन्होंने अपनी लाइफ का, एक बहुत बड़ा पार्ट जो था रेशियल प्रेजुडाइज के अगेंस्ट लड़ने में इन्होंने यूटिलाइज किया, एंड एट लास्ट ही गॉट द रिजल्ट ऑफ इट ऑल्सो। ही बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेजिडेंट एंड फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन in 1994, on 10th May 1994. So with this, our question answers and our chapter comes to an end. So I hope you have well understood all these answers. So in this video, this much only. Thank you and have a nice day.